Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will start with unit number 3, that is a partial differential equation of our syllabus. So, in university exam, the weightage of this unit is 13 of 14 marks. So, every year, 3 questions will be asked from these units carrying a weightage of 13-14 marks. So, today, first, we discuss what are the main topic we will going to cover in this unit, that is a partial differential equation. So, content first we discuss the content of the lecture. We discuss the number of lecture on this topic partial differential equation. So, what are the content which are going to deliver in next few lecture we will discuss first here. So first, we learn what is meant by differential equation. We already learned the definition of differential equation in unit number 1, and also we will discuss this concept in first year engineering in mathematics 1. So again, we will discuss here what is meant by differential equation. Second, then comes toward our main chapter, that is a partial differential equation. So we define what is meant by partial differential equation. So number 3, in this unit we have to find the solution of partial differential equation, that is called the complete solution. So in this unit we will study some specific form of partial differential equation. One from this is known as a non-linear partial differential equation. There are the number of form of partial differential equation, such as the partial differential equation of first order and first degree, the partial differential equation of first order and higher degree. Then there is a linear partial differential equation, there is a non-linear partial differential equation, there is a homogeneous partial differential equation, there is a non-homogeneous partial differential equation. So these are the various form of the partial differential equation. Out of this, here we have to study non-linear partial differential equation. Then next topic is we study the linear differential equation of some specific type, that is called the Lagrange's linear partial differential equation. And then our last topic is homogeneous partial differential equation of nth order with constant coefficient. So ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा इस यूनिट का सिलेबस में कंटेंट है कि इतने टॉपिक आपको करने हैं इस सिलेबस, इस यूनिट का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सॉल्व करना है तो इतने सारे टॉपिक हमको करने हैं. तो हम एक बार एक इसको डिस्कस करेंगे. पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, और बाद में नॉन लीनियर के हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे और आगे जाकर फिर लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और बाद में लास्ट टॉपिक जो है होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये भी हम देखेंगे. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज अ डेफिनेशन. सो व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? So first, the definition of differential equation. So suppose we will start with the example of differential equation. So dy by dx plus xy is equal to 1. It is a differential equation. Suppose we consider del z by del x plus del z by del y is equal to xy. It is again a differential equation. Why it is differential equation? ये differential equation क्यों है? क्योंकि differential equation के लिए आपको हमेशा 3 चीजें चाहिए इक्वेशन में. अगर वो 3 चीजें इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उस इक्वेशन को बोल सकते हैं हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन है. नंबर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल.
डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, and number 3 differential coefficient, differential coefficient। भाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा ये हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप पहला इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स की टर्म रहती है, मतलब डेरिवेटिव की टर्म होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब ये जो है ये इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। वो इक्वेशन में प्रेजेंट है दोनों इक्वेशन में। बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल किसी और पे डिपेंड है। तो अगर मैं इस टाइप का इक्वेशन लेता हूं, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो मुझे y कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो y कितना मिलेगा, मुझे 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिलेगा। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूं तो y कितना मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो गई। मतलब y क्या है, y x पे डिपेंड है, इसलिए y को क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव जिसका रहता है, मतलब जैसे dy बाय dx है, तो यहाँ पे y रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज डिपेंड्स ऑन x, सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इक्वेशन में दोनों चीजें प्रेजेंट रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर z का डेरिवेटिव निकल रहा है x से, मतलब z x पे डिपेंड है, और z का डेरिवेटिव निकल रहा है y से, तो z y पर भी डिपेंड है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा ना वो इस टाइप का रहेगा, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मतलब सपोज अगर इक्वेशन यूज करेंगे हम तो इस टाइप का इक्वेशन, अगर मैं x को चेंज करता हूं तो मुझे z चेंज होगा, अगर मैं y को चेंज करता हूं तो मेरा z चेंज होगा, अगर मैं दोनों को चेंज करता हूं तो भी मेरा z चेंज होगा। मतलब यहाँ पे z जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y जो है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल किस पे डिपेंड नहीं है उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो dy बाय dx मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, बाद में y और x है, तो y का डेरिवेटिव x से निकलता है, मतलब y x पे डिपेंड है, तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड इक्वेशन में अगर देखेंगे आप तो ये जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, बाद में z का डेरिवेटिव x से निकलता है और z का डेरिवेटिव y से निकलता है, तो z हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए तीनों जो कंडीशन है वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की सिंप्लीफाइड डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हैं, एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन। सो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एन इक्वेशन विच कंटेन और विच इन्वॉल्व्स dependent variable, then independent variable and differential coefficient is known as differential equation। जिस इक्वेशन में ये तीनों कंडीशन होगी उसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी वहां पे इशू ये है कि यहाँ पे जो डी है वो कंप्लीट है, यहाँ पे डी नहीं लिखा है, यहाँ पे डेल लिखा है, तो इसके पीछे क्या मीनिंग है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मेनली दो टाइप है। डिफरेंशियल इक्वेशन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में, इसी M3 के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
और थर्ड यूनिट में हमको देखना है सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंस है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए पहले इक्वेशन के लिए मैंने ये यूज किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मुझे ये इक्वेशन मिल सकता है इस टाइप का, और दूसरे इसको मैंने ये यूज किया तो मुझे इस टाइप का इक्वेशन मिल सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है दोनों इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकल रहा है तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है। यहाँ पे z का डेरिवेटिव निकल रहा है और यहाँ पे भी z का डेरिवेटिव निकल रहा है, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, z का ही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या है, एक ही है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो चेंज है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो जो भी मैं y का डेरिवेटिव निकलूंगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी है y की ये सिर्फ x पे डिपेंड है, x छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिस पे y पे डिपेंड करेगा। तो y का जो डेरिवेटिव निकलेगा वो कंप्लीटली x से ही निकलेगा, इसलिए उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं। और जो दूसरा इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो z का डेरिवेटिव x से भी निकलता है और z का डेरिवेटिव y से भी निकलता है, मतलब z जो है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड है यहाँ पर, और जो दो वेरिएबल है वो है एक x और एक है y। मतलब अगर मैं x को चेंज करता हूं तो z भी चेंज होगा, y को चेंज करता हूं तो z भी चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डेल के फॉर्म में, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। तो पार्शियल और ऑर्डिनरी में डिफरेंस यही है कि अगर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, एंड इफ देयर इज अ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड द पार्शियल। तो अगर मुझे उसको डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, और डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब ये तीनों चीजें आएंगे, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, एन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी ये चीजें मुझे बताने का काम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब ये तीनों चीजें उसमें आई है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं डायरेक्ट, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स only one independent variable is known as a ordinary differential equation, and the equation which contains more than one independent variable is known as a partial differential equation। तो ये हो गया इसका मेन डिफरेंस, ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ पे डी के टाइप में इक्वेशन होगा तो आपको हमेशा वो इक्वेशन क्या रहेगा, ऑर्डिनरी रहेगा, और इस टाइप में इक्वेशन रहेगा तो वो इक्वेशन क्या रहेगा, हमारा पार्शियल रहेगा हमेशा। तो हमें यहाँ पे इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नोटेशन भी यूज किया है, वो नोटेशन में भी आप बता देता हूँ। यहाँ पे अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो उसको p से डिनोट किया है फॉर सिंप्लिसिटी, और डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो उसको q से डिनोट किया है। मतलब आपको जो प्रॉब्लम में आएंगे वो p और q की वैल्यूज इस टाइप में आएंगे। तो p मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और q मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो गया व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है, इसमें पहले हमको स्टडी करना है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर ऑफ कोर्स नॉन लीनियर है तो लीनियर टाइप के इक्वेशन भी रहेंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस में टॉपिक है वो सिर्फ पहले नॉन लीनियर है, और लीनियर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, दो है लैग्रेंजेस। तो हम वो बाद में पढ़ेंगे लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है। सो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन P एंड Q। P एंड Q मतलब P मतलब डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, एंड Q मतलब डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो है वो इस टाइप का है, f ऑफ P Q x y z इक्वल टू 0।
So it is a general form of non-linear partial differential equation. सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल गया आपको, नॉन लीनियर ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यूनिट हम पार्शियल के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे वो सब क्या रहेंगे, पार्शियल ही रहेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने स्टडी कर लिया कि द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द इक्वेशन इज फॉर्म इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर आपको इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन में डेरिवेटिव इस टाइप में रहेंगे, डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y, इस टाइप में, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे हम तो डेल 2z बाय डेल x स्क्वायर, डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर, इस टाइप में, बराबर। तो अगर इस डेरिवेटिव की अगर ऑर्डर 1 है, मतलब अगर मैं यूज करता हूं डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y, तो डेल z बाय डेल x को जो हमने यूज किया वो p इक्वल टू कंसीडर किया है और डेल z बाय डेल y को हमने q कंसीडर किया है, फॉर सिंप्लिसिटी नोटेशन वो यूज किया है। तो अगर प्रॉब्लम में p और q प्रेजेंट है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब p का पावर कितना है 1 और q का पावर भी कितना है 1, तो वो इक्वेशन क्या हो सकता है, वो लीनियर होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा। लेकिन अगर p स्क्वायर q स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर अगर ये है तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर। तो पहले लीनियर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, p एंड q द ऑर्डर इज 1 मतलब पावर इज 1, p और q की पावर क्या हो सकती है, 1 होगी। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव नॉट मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो मल्टीप्लाई हो गए तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा, लीनियर नहीं रहेगा। मतलब सिंपली अगर आपको गिवन है p इज इक्वल टू q, तो ये लीनियर इक्वेशन है। आपको गिवन है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p का पावर 1 नहीं है, q का पावर 1 नहीं है, तो ये हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपको इस टाइप का इक्वेशन भी है p स्क्वायर z प्लस q इज इक्वल टू 1, p का पावर 1 है, q का पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है ना, p मतलब क्या होता है, डेल z बाय डेल x और ये z, तो यहाँ पे क्या हो रहा, z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये मल्टीप्लाई हो रहा। तो इस टाइप के इक्वेशन भी क्या रहेंगे, नॉन लीनियर रहेंगे। लीनियर इक्वेशन वही रहेंगे जिसमें p और q का पावर क्या है 1 है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चाहिए हमको, मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। अदरवाइज जिस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेसिफिकली स्टडी करना है और उस टाइप के इक्वेशन में ये जनरल इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन को आपका अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म को क्या करेंगे हम, अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। कुछ शॉर्टकट मेथड है और एक कंप्लीट के लिए एक 4 पीस मेथड भी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके शॉर्टकट टाइप्स दिखेंगे। मतलब शॉर्टकट टाइप्स कैसे रहेंगे, हर कोई इक्वेशन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें पांचों वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे। कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे कि जिसमें पी और क्यू रहेगा सिर्फ, कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिसमें पी क्यू और एक्स वाई रहेगा, कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जिसमें पी क्यू और जेड रहेगा। मतलब कोई ना कोई वेरिएबल क्या हो सकता है, अपसाइड हो सकता है, कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पे कम हो सकता है। तो बेस्ड अपॉन दैट इसके क्या की हमने अलग अलग पार्ट्स की है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसको बोलते हैं स्पेशल केसेस। जनरल के लिए एक अलग केस है जो हम सबसे आखिरी लेंगे, दैट इज कॉल्ड द 4 पीस मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले क्या करेंगे, हम स्पेशल केसेस लेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, इस टाइप का कोई इक्वेशन रहेगा जो आपका नॉन लीनियर रहेगा
और हमको क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, इस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन निकालना है। और हमारा एम यही है, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे, एक या दो प्रॉब्लम आएंगे कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के इक्वेशन जिसमें पी क्यू एक्स वाई जेड इस फॉर्म का है, कोई एब्सेंट भी हो सकता है, पांचों वेरिएबल हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कितने भी, मिनिमम दो वेरिएबल रहेंगे इसमें। तो इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला हम टाइप 1 लिखेंगे। टाइप 1, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, दैट इज एक्स वाई जेड आर एब्सेंट। ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टाइप आपको बराबर आते हैं तो आप इजीली इस टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वही डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है, तो इसके मेथड क्या है, मेथड तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कंसीडर करना है। सो लेट द सॉल्यूशन इज गिवन बाय z is equal to ax plus by plus c। इसको 1 बोलता हूं मैं और इसको 2 बोलूंगा। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे 2। मतलब जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, p और q उसमें प्रेजेंट रहेंगे, तो आपका सॉल्यूशन हमेशा यही होगा। अभी देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे आया, तो ये जो है ये स्पेशल केसेस है। जब हमने जनरल केस हम सॉल्व करेंगे तब उसके कुछ स्पेशल केसेस निकल के आएंगे बाय यूजिंग चार पीस इक्वेशन। तो अगर आपको लगेगा तो हम वहां पे वो डिस्कस कर लेंगे कि इस टाइप की केस कैसे बनी। यहाँ पे सिर्फ आप इतना ध्यान में रखोगे कि अगर पी और क्यू का फंक्शन है और इसको आपको सॉल्व करना है तो आपका सोल्यूशन क्या रहेगा, इस टाइप का रहेगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम प्रोसीजर में, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्शियली करेंगे। तो अभी पहले z को हम x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा डेल z बाय डेल x। तो z को अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां पर x है उसका डेरिवेटिव निकलेगा और बाकी के टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तो उसके डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू ए इज a, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 और ये भी 0। तो ये डेल z बाय डेल x को क्या बोल सकते हैं हम, p। तो आपको जो p की वैल्यू मिल गई वो मिल गई हमें a। वैसे ही अगर मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं डेल z बाय डेल y तो इसको बोलते हैं हम q। तो यहाँ पे कहीं पर भी y नहीं है तो ये इसका डेरिवेटिव 0 हो गया बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म हो गई। यहाँ पर y का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू b क्या हो गया, b, और c इज अ कांस्टेंट, तो 0, तो आपको b मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको p इक्वल टू e मिलेगा, q इज इक्वल टू b मिलेगा। यहाँ पे हमने निकाला कैसे मिला आपको, वहां पे क्या होगा, आपको हर प्रॉब्लम में यही मिलेगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको p की वैल्यू हमेशा a मिलेगी और q की वैल्यू हमेशा b मिलेगी। तो अगर आप आगे जाकर थोड़ा आपको शॉर्टकट भी करना है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली वी गेट p इक्वल टू a, q इक्वल टू b। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है हमको, तो इसके बाद यूज p एंड q इन इक्वेशन 1। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें हमको क्या करना है, p और q की वैल्यूज पुट करना है। मतलब p की वैल्यू पुट करना है हमको ये, और q की वैल्यू हमको पुट करना है b। तो ये पुट करने के बाद एंड फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b और b इन टर्म्स ऑफ a। आपको क्या करना है, दो वेरिएबल आपके पास a और b, तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। एक तो आप a की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू आएंगी तो वो b के फॉर्म में आएगी, या b की वैल्यू निकालो b की वैल्यू आएंगी a के फॉर्म में। दोनों में से कोई एक ही करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे और डाला। दोनों अगर करेंगे आप तो वहां पे वापस वहीं पे आएंगे आप। तो दोनों में से कोई एक ही प्रोसीजर करनी है, a की वैल्यू b में निकालो या b की वैल्यू a में निकालो, और ये निकालने के बाद यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट z इक्वल टू, तो सपोज अगर मैंने a की वैल्यू b के फॉर्म में निकाली तो a को मैं रिप्लेस करूंगा, तो phi ऑफ b x प्लस by प्लस c, ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।
कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास 3 कांस्टेंट है जो कि ए, बी और सी है, और डेरिवेटिव जो हमारे प्रॉब्लम में वो 2 ही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और एक डेरिवेटिव का एक रूल है कि जितने डेरिवेटिव रहेंगे आपके उतने ही आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे, जो एबीसी क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मेरे पास तो 2 ही डेरिवेटिव है, तो मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 ही मिलने चाहिए, लेकिन मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने 3 है, तो एक को हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए बी का फंक्शन मतलब बी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए हमारे 2 ही हो गए। तो आपके आंसर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको कितने चाहिए 2 ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसीजर है कि आपको अगर फंक्शन पी और क्यू के फॉर्म में है और उसको सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बेस्ड अपॉन दैट वी टेक सम एग्जांपल और बाद में उससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम को हमको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइप 1 के बारे में देख रहे हैं हम। टाइप 1 में वही प्रॉब्लम आएंगे जिसमें पी और क्यू प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ, बाकी के तीनों वेरिएबल क्या है वहां पर एब्सेंट है। Okay, so we take example based upon that. Number 1, solve P plus Q is equal to 1. एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, जब भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप एक बात देखिए वहां पे, उसको पहले लिख लीजिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज P प्लस Q इक्वल टू 1, कॉल्ड एज 1, ठीक है। बाद में वेरियस आपके अभी टाइप होंगे, अभी तो हमारे पास एक ही टाइप है, इसके बाद और टाइप आएंगे, तो किस टाइप का वो प्रॉब्लम है ये आप उसको फाइनलाइज कर लो। क्या होगा, अगर आपने टाइप जो है वो फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो मेथड आपको यूज करना इजी हो जाएगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम किस मेथड का है, हम तो अभी एक ही मेथड देखिए, फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो उसी मेथड का होगा। और देख लीजिए आप, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, वेरिएबल कौन से हमारे 5 है, पी क्यू एक्स वाई जेड, उसमें से देखना है आपको कि इसमें कितने हैं। इसमें हमारे पास 2 ही वेरिएबल है पी और क्यू, तो हम इसको लिखेंगे विच इज ऑफ द टाइप, विच इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, बराबर। और अगर इस टाइप का इक्वेशन अगर होता है तो सॉल्यूशन हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपली क्या करना है अभी, इसको डिफरेंशिएट करो x और y से पार्शियली, तो आपको क्या मिलेगा, p और q की वैल्यू मिलेगी। प्रोसीजर वही है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y partially we get, ठीक है। तो z का डेरिवेटिव लेंगे हम x से, तो डेल z बाय डेल x मिलेगा। तो डेल z बाय डेल x को क्या बोलते हैं हम, p बोलते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये a आ जाएगा और ये तो 0 0 हो जाएगा। तो हर एक प्रॉब्लम में आपको आंसर यही मिलेगा, a और b, अलग कुछ नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड q मतलब क्या होता है, डेल z बाय डेल y। इसको अगर y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि पार्शियल है मतलब अनदर वेरिएबल कांस्टेंट, जो इसका डेरिवेटिव है उससे ही निकलेगा, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, b। a और b की वैल्यू मिल गई आपको p और q की, ये वैल्यू उठाकर कहाँ पे यूज करना है हमको, इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज p के जगह पे क्या पुट करना है a और q के जगह पे क्या पुट करना है b, तो a प्लस b इक्वल टू 1। इसका यूज करके आपको एक तो a की वैल्यू निकालना है, एक तो b की वैल्यू निकालना है, दोनों में से सिर्फ एक ही काम करना है। तो सपोज मैं a की वैल्यू निकालता हूं, तो a की वैल्यू क्या आती है मेरी 1 माइनस बी, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस बी, और ये वैल्यू उठाकर कहां पे रखना है हमको, इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज z इक्वल टू कितना है, ax प्लस by प्लस c। तो z इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस बी, b एज इट इज प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। इतना इजी प्रॉब्लम है, इतना इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है आपको।
P की वैल्यू ये और Q की वैल्यू B, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि इस टाइप का इक्वेशन है तो आपको वैल्यू A और B मिलती है, और इसको यहाँ पे पुट करके एक तो A की वैल्यू निकालो, एक तो B की वैल्यू। लास्ट में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो लास्ट इक्वेशन रहेगा उसमें सिर्फ दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे B और C दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे A की वैल्यू निकाला, आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ए, तो B की वैल्यू 1 माइनस ए रहेंगी, तो मैं A एज इट इज रखूंगा और यहाँ पे 1 माइनस ए वाई रखूंगा और C, मतलब वहां पे A के फॉर्म में निकालूंगा। तो आंसर आपका एक तो A के फॉर्म में रहेगा, A और C के फॉर्म में रहेगा, C तो रहेगा, या B और C के फॉर्म में रहेगा, लेकिन आपका आंसर इसी फॉर्म में रहना चाहिए। अगर आपने यहां से एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं किया तो आपका प्रॉब्लम कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो जो मेथड है, जो उसका नेचर है, वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दो डेरिवेटिव है तो हमको दो ही वेरिएबल चाहिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस टाइप से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।